Hello, good morning once again. So, class 9, all of you have sent a lot of PDF in this WhatsApp group. So, lots of PDF of science, and so that's why I decided to teach you science. And the first chapter of the science is matters and its surroundings. So, let's start. What is this chapter? And I decided not teach you by the book because this is a science, this is not social science. So I didn't have any blackboard or another thing because I am at home. So all these things make a notes, and after making a notes I decided to impart you by this video. So carefully listen and understand all these things what is I'm going to share you, tell you, impart you. Okay, so the first chapter is matter and its surroundings. So the first things that we comes that you should think about the matter. What is the matter? So anything, whatever, anything occupies space and having mass called matter. It means anything around your surrounding occupies space, मतलब वो जगह लेता है, और having mass, जिसके पास कुछ weight हो, mass हो, वो क्या कहलाता है? Matter. As for example, book, pen, water vapor, CO2, anything, other gases, even a stream, जो उसमें भी कुछ न कुछ वेट होता है. So all these things are called matters. This is the simple definition of matter. So do you think all the things that your surrounding found in your surroundings is matter? तो क्या आपको ये लगता है कि आपके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं सारे के सारे मैटर्स हैं? नो फ्रेंड्स, नो स्टूडेंट्स. Actually there are a lot of things that is not matter. Think about that, like relationship, emotions, love, hate, okay, thinking, ideologies, and even your software software has no any mass, and software didn't occupy the space. So these all things are also not belongs to matter. They are not called matter. So for being matter, there are two things must be necessary. The first one is matter should have a space. Anything occupy a space. And the second thing, that is having mass, यानी कि उसको कुछ जगह वो ऑक्युपाई करना चाहिए. जैसे स्ट्रीम है, यानी कि स्ट्रीम मतलब भाप. वो जब आप देखते होगे जब वो गैसेस बाहर निकलता होगा तो कुछ न कुछ उसका वो भी कुछ न कुछ अपना स्पेस ले लेता है, और बहुत कम टेनी एकदम माइनर उसका ही वेट होता होगा, लेकिन होता ही है उसका वेट, उसका मास होता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड मास. बिसाइड बुक, पेन, वाटर, ये सब तो सॉलिड जो है वो ऑटोमेटिक मैटर होगा. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. You should keep in mind. Further, we should go ahead. The classification of matter. Matter is classification. How many types of classification of matter? There are two types of classification of matter is available in your syllabus. Matters का दो classification है, एक physical and second chemical. In physical, according to physical classification, there are three types of matter, that is solid, liquid, gas, and two another thing that has been added. The first one is
plasma, and the second another things is that I will teach you in the next video. तो प्लाज्मा एंड अदर वन थिंग्स है वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी फिजिकल जनरली प्रिवेलेंट यही तीनों हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर का there are three types of matter according to physical classification, that is solid, liquid and gas. And according to chemical classification, there are three types of gases, three types of matter, that is element, mixture and compound. वैसा कुछ कोई भी चीज़ जो एलिमेंट है, फिर वो मिक्सचर जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिले हुए होते हैं, और कंपाउंड जो दो या दो से अधिक मैटर को मिला करके बनाया जाता है. तो दैट इज अनदर थिंग अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड chemical. These two types of things are matter has been classified and into these two types of things. Now the characteristics of matter. You should know that all of you have some characteristics. Some of your nature are very cool and calm. Some of the students like you are very very modest. Some of the person who like something, their taste, nature of taste is something. मतलब सबका अपना अपना कुछ न कुछ नेचर होता है, स्टाइल होता है. तो उसी तरीके से मैटर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका भी कुछ लक्षण होता है. कैरेक्टरिस्टिक मीन्स लक्षण होता है. तो फर्स्ट थिंग्स हियर I am going to teach you science. So according to science, there is a very important rule that should be in the science, and that should require the that is very required in science, because if you say something you have to prove. तो ये साइंस है, इसमें कुछ भी कहते हो तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर यहाँ पे आगे बताते जाएंगे और साथ में उसको प्रूफ भी करते जाएंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में फर्स्ट थिंग है पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स में छोटे छोटे कण जो होते हैं, हैव मेनी स्मॉल्स. पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे भाग, वो बहुत छोटे छोटे भागों में उसको विभाग तोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से भी एटम बना हुआ है. It's a very fact example of particles of matters are very small. But here in this chapter we will prove it by the some activities. First of all, we should take a glass of water or beaker of water. Beaker ग्लास के जैसा ही होता है, थोड़ा वो कांच का बना हुआ होता है. लैब में आप जाओगे तो देखोगे. तो I will take a beaker of glass, and I will it will have some water. इसमें कुछ वाटर पहले से है. अब now just put a small piece of KMnO4. And what is KMnO4? KMnO4 is a chemical name of potassium permanganate. पोटेशियम परमानेंट का केमिकल नेम है. तो एक स्मॉल पीस मतलब छोटा सा पीस डाल देते हैं इस वाटर में, और क्या हो जाता है इस वाटर का कलर? इस वाटर का कलर हो जाता है पर्पल कलर का वाटर हो जाता है. व्हेन इस क्लीन वाटर में जब हम स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम परमानेंट यानी कि KMnO4 डालते हैं, तो ये बहुत छोटा सा था, स्मॉल पीस ऑफ लेते हैं, इसको डालते हैं स्मॉल पार्टिकल, तो इसका कलर हो जाता है पर्पल, वाटर का कलर. देन द नेक्स्ट स्टेप, डाइल्यूशन. वी हैव टू डाइल्यूट. आई एम गोइंग टू डाइल्यूट दिस वाटर, मिक्सचर ऑफ वाटर. So how can you dilute and what is dilution? तो dilution मतलब किसी चीज़ को पतला करना. For dilute this
water and mixture of water and potassium permanganate, we have to add some water, we have to increase the volume. तो some water इसमें हम डालते हैं, तो वाटर डालते हैं तो थोड़ा सा ये डाइल्यूट और हो जाता है, पतला हो जाता है, फिर डाइल्यूट करते हैं। इस तरीके से जब डाइल्यूट करते करते बहुत सारा कई एक बार वाटर ऐड करते जाते हैं इसमें, तो क्या होता है, ये डाइल्यूशन हो करके इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। सो वाई द कलर हैज बीन चेंज, द क्वेश्चन इज वाई द कलर ऑफ द potassium permanganate, that is actually in purple color, why it change? So the answer is कि जब इस स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम परमानेंट KMnO4 को डाला जाता है तो इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं, ये जब एक वाटर को डाइल्यूट किया जाता है तो न्यू वाटर आता है, तो उसके पार्टिकल के साथ ये इसको इम्पार्ट नहीं कर पाता है, मतलब इसको आगे तक नहीं कैरी कर पाता। इस वजह से इसका कलर चेंज होते चला जाता है और इस वजह से क्या होता है, ये कलर जो है सो पिंक हो जाता है ब्लू से, पर्पल से। सो दैट्स वाई ये छोटे, इसका पार्टिकल छोटा होने की वजह से, पोटेशियम परमानेंट का पार्टिकल छोटा होने की वजह से ये क्या होता है, इसको इम्पार्ट नहीं कर पाता है, अपने कलर को इम्पार्ट नहीं कर पाता है, उसको मेंटेन करके नहीं रख पाता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आगे वाटर में डिज़ोल्व करके अपने आप को इम्पार्ट करके एक मिला नहीं पाते हैं, तो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जब ये इस वजह से ये वाटर के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व होते जाते हैं और डिज़ोल्व होते 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 इसका कलर एकदम पिंक हो जाता है। तो दिस इज़ द फैक्ट, दैट्स वाई the color has been changed. So we can say that particles of matter are very very small. तो ये इस प्रोसेस, इस प्रैक्टिकल के थ्रू हमने दिखाया कि रियली पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये छोटी सी एक्टिविटी थी, ये हमने करके दिखाया। नाउ द सेकेंड फीचर्स और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द we will learn about the second characteristics of the matter. Matter का second characteristic क्या है, and what is, before that we have, I want to explain reason. हमने यहाँ पे reason भी maintain कर दिया है। Reason, what is the reason behind it for being a purple color of potassium permanganate change into a pink color? So what is the reason behind it? By increasing the volume is adding some water. Still KMnO4 is there, still अब तक KMnO4 वहाँ पे है। So we can say that particles of matter are very very small. उसमें पोटेशियम परमानेंट अभी भी है, बट उसका कलर चेंज हो गया है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, वो इम्पार्ट नहीं कर पाता है, दे नहीं पाता है। तो इस वजह से दिस इज़ द रीज़न। बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, जब हम इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को, इंक्रीज करते हैं यानी कि ऐड करते हैं वाटर को, या उसको हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट करते हैं, तो KMnO4 वहाँ से हटता नहीं, KMnO4 उसके बावजूद भी वहाँ पे रहता है। सो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सो दिस इज द reason, that's why we can say that particles of the matter are very very small. थोड़ा सा हम इसको इलेबोरेट करके बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, अदरवाइज इतना इलेबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, जो भी पार्टिकल्स हो, वाटर हो, जो भी मैटर हो, वाटर हो या फिर ऑयल हो या फिर जो कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर को उठा लो, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके एक से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो हाउ कैन वी प्रूव इट?
ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे कण, और वो छोटे छोटे कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसके बीच में भी स्पेस होता है। दैट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. So how can you say that? You have to prove by doing some activity. So for that we will do again some types of activity, or for that I'm going to tell you that activity I have done in your copy. So take small particle of sugar, मतलब चीनी का या नमक का कोई छोटा सा, नमक का भी आप ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ शुगर का आप करके दिखाए हैं। शुगर का कोई छोटा सा पार्टिकल लेना है, और ये विकर एक लेना है। विकर में मान लो कि 10 ml वाटर रख दिया है। वाटर को, वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, उसको मेजर कर लेंगे 10 ml, या फिर आप बढ़ा भी सकते हो, जितना इच्छा है वो कर सकते हो, बट यहाँ पे 10 ml हमने लिया। और इसको क्या किया, इसमें स्मॉल पार्टिकल ऑफ शुगर को डाल दिया। अब उसके बाद क्या किया, इसको सटायर किया। सटायर किया मीन्स इसको घोलना। आफ्टर द डिजॉल्विंग द शुगर, अब इसमें मान लो कि 10 ml है, थोड़ा सा लिया मिट्टी का ये शुगर, चीनी का ढेला, या फिर सॉल्ट डाल सकते हैं आप। तो उसके बाद जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये 10 ml से इसका ज़्यादा हो जाना चाहिए वेट, और इसका वाटर लेवल क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इसमें नया चीज़ डाला गया है और उसका वॉल्यूम भी तो है। बट आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर the water is there only of 10 ml. अब 10 ml है और इसमें कुछ डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद भी इसका वॉल्यूम जो है 10 ml ही क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि वाटर के जितने पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, और ये जो शुगर डाला गया, जब डिसॉल्व हुआ शुगर, तो वो शुगर उसके छोटे छोटे स्पेस के बीच में जा कर के अपना जगह उसको भर देता है और उस जगह पे अपने आप को सेट कर लेता है। दैट्स वाई द वॉल्यूम एंड वाटर लेवल इज नॉट चेंजिंग हेयर। तो इस वजह से वाटर लेवल चेंज नहीं होता है। सो वी कैन से दैट पार्टिकल ऑफ द मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, जितने भी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। बाय ये एक्टिविटी ये प्रूव करता है। होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। अदरवाइज अगर आप नहीं समझते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो और राइज कर सकते हो। बट श्योरली ये मैं चाहूँगा कि जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसका क्वेश्चन आंसर भी आप करके दिखाओ, और अदरवाइज ये वीडियोज़ बनाने का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा। सो ये रीज़न मैंने यहाँ पे मेंटेन भी कर दिया है, आप इसको लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, ये समझा भी दे, यही है। आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर इन द वाटर देयर इज नो चेंज फाउंड इन वाटर, सो वी कैन से दैट पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस अमॉन्ग देम। वही चीज़ है। थर्ड, अब इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, वो ये है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैविंग पार्टिकल्स ऑफ द मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली। ये जो कोई भी पार्टिकल्स होता है ना, उसके कोई भी मैटर्स होता है, कोई भी मैटर, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस का तो ऑटोमेटिक सा पता चलता है कि जैसे ही कुछ गैस अब हवा में छोड़े हुए तो उसका पार्टिकल इतना मूव करता है कि वो एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में तुरंत मिल जाता है। तो वो क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि वहाँ पे पार्टिकल्स जो है ऑफ द मैटर्स आर मूविंग। लिक्विड में नहीं पता चलता। तो लिक्विड में सबसे सिंपल एग्जांपल उसका है कि जब आप लिक्विड को किसी विकर में रखे हुए, किसी कंटेंट में रखे हुए हो, किसी भी बर्तन में रखे हुए, जब उसको छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरा जगह ऑटोमेटिक बह करके चला जाता है। तो वाई, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर मूविंग। और द थर्ड थिंग है जो सॉलिड में पता नहीं चलता है, क्योंकि हमको लगता है सॉलिड में ये जो है से पार्टिकल्स मूव नहीं करता है,
तो सॉलिड में भी पार्टिकल्स मूव करता है। इसका भी रीज़न मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। वो ऐसे कि कल को अगर आप इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि दो पत्थरों को अगर रख करके एक जगह छोड़ दिया जाए और बहुत दिनों तक उसको छोड़ दो, तो क्या होता है, सालों के बाद वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, उसको हटाने में प्रॉब्लम होता है। वाई? बिकॉज हियर द पार्टिकल्स आर मूविंग एंड आफ्टर मूविंग दे कैच ईच अदर। इससे भी थोड़ा सा और अलग एग्जांपल आप देखो, जब बोर्ड पे स्कूल में चौक से हम लिख करके या कोई भी टीचर लिख करके चले जाएंगे और उसको छोड़ दिया जाए 2-4 दिनों तक, तो क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स उसको मिटाने में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उसके डस्ट पार्टिकल होता है वो क्या करता है, वो तो सॉलिड ही हुआ ना, वो बोर्ड के पार्टिकल के साथ मूव करके उसमें डिसॉल्व होने लगता है। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स भी मैटर का जो सॉलिड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर ना जनरली ऑन द फिजिकल बेस। तो ये तीनों क्या होता है आपस में ये मतलब कि सॉलिड का भी पार्टिकल आपस में मूव करता है। तो सॉलिड का थोड़ा कम मूव करता है, लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा मूव करता है, और गैस जो है उसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन पार्टिकल सब सारे मैटर्स का पार्टिकल मूविंग करता है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। सो यहाँ सम ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने के लिए दिए, बट यहाँ सम एक्टिविटीज़ करके भी दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, अराइज हो जाएगा क्वेश्चन इसी तरीके से। इसके लिए एक बीकर लेते हैं, वाटर है, कलरलेस है, मतलब एकदम वाइट सिंपल वाटर है, सादा पानी है। इसमें CuSO4, एंड व्हाट इज CuSO4? इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का केमिकल नेम है। छोटा सा कॉपर सल्फेट इसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये जब डिज़ोल्व होता है तो क्या होता है, ये ब्लू कलर हो जाता है। इसका कलर ब्लू होने का वजह क्या है, इसका पार्टिकल्स जो है, दोनों का पार्टिकल्स एक मूव कर रहा है अंदर में। तो एक जब मूव कर रहा है चारों तरफ, तो CuSO4 जो कि सॉलिड का पार्टिकल्स है, और ये जब एक दूसरे से मूव करते रहता है, इसका पार्टिकल्स भी चारों ओर कंटिन्यूअसली मूविंग करते हुए हैं, और वाटर का भी जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो भी मूव करता है, तो ये एक दूसरे से डिसॉल्व होता चला जाता है। दैट्स वाई वी कैन से, और इसका कलर क्या होता है, जो ब्लू कलर में ये चेंज हो जाता है आफ्टर डिसॉल्विंग। सो वी कैन से दैट particles of the matter moving continuously. This is the third property of particles. And what is the reason behind it? तो यहाँ पे मैंने रीज़न तो मैंने समझा दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने रीज़न लिख भी दिया है। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो, तो हम पढ़ के भी बता देते हैं। बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, थर्ड पार्टिकल्स हो गया, और थर्ड पार्टिकल्स के बाद इसका फोर्थ, ये थर्ड, सॉरी, हाँ, ये थर्ड जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली। और इसके बाद जो है फोर्थ, इसका फीचर्स, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो मूव तो करते हैं, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे या सॉलिड हो, लेकिन उन सब के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के समीप भी रहते हैं। एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को बाय फोर्स अपनी ओर खींचता है, इस वजह से वो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, इसमें सबसे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज सॉलिड में आप देखोगे कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस है, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ होता है, सॉलिड सब्सटेंस को रखोगे तो वो क्या होगा, वो मूव नहीं करेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहता है। तो वो कॉम्पैक्ट उसमें ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉम्पैक्ट ज़्यादा होता है, एकदम पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और वो
इसलिए नज़दीक होते हैं कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उससे थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में। जब किसी बीकर में उसको रख दोगे या किसी कंटेंट में रख दोगे तो वो क्या होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जब ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो ऐसे मूव करने लगता है और कहीं ना कहीं जा कर के फिर से वो जम जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, और वहाँ पे फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोगों के बीच में होता है। तो लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और ये जो गैस है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एकदम बहुत कम होता है, लो डेंस होता है। इसीलिए जब भी गैस को हम लोग निकालते हैं बाहर, तो वो निकालने के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिक सा क्या होता है, उसके बाद वो चारों ओर हवा में डिसॉल्व होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। और ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हम आगे के इसी वीडियोज़ में आगे भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमने इसमें बताया क्या, सबसे पहले मैंने अभी समझाया आप लोग को व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है, सिंपल डिफिनीशन है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देर आर on the two base of the two base matters are classified। टू बेस पे मैटर को क्लासिफाइड किया, एक फिजिकल बेस पे, दूसरा केमिकल बेस पे। फिजिकल बेस पे हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल बेस पे हो गया एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या हुआ, वो अकेला होता है, सिंगल कोई भी। मिक्सचर क्या हुआ, दो से दो अधिक मैटर जब मिल जाता है, मेटल्स को मिला करके बनाया जाता है। और कंपाउंड क्या होता है, दो से अधिक दो मेटल्स को मिलाता है तो मिक्सचर हो गया, और दो से अधिक मिलाया गया तो वो कंपाउंड हो गया। तो उसका हम भी जब जो केमिकल बेसिस पे जो डिवाइड किया गया है उसको भी हम आगे के इसके आगे वाले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी ये 4-5 वीडियोस अभी इस चैप्टर पे बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लार्ज है और इसको हम केवल 9th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हैं, इसको इस तरीके से बता रहे हैं कि आपके आगे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको काम देगा। सो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, व्हेन यू पुट KMnO4 पीस इन द वाटर, when you put KMnO4 piece in the water, the slowly purple color change into pink, why? तो हमने KMnO4 को रखा था, एक एक्टिविटी था उसमें, और वो जो है कलर क्या हो गया था उसका, पर्पल था। जैसे पोटेशियम परमानेंट का कलर पर्पल था, लेकिन वो क्या हो गया, पिंक में हो गया, चेंज हो गया। क्यों हो गया बताया जा चुका है, पीछे एक्टिविटी करके दिखाया हुआ, रीज़न दिया हुआ, आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड है, व्हेन वी शुगर और सॉल्ट, देन वाई द वॉल्यूम ऑफ, व्हेन यहाँ पे लगता है छूट गया है, व्हेन वी डिजॉल्व होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते, 1 मिनट। ये डिजॉल्व यहाँ पे होगा, व्हेन वी डिजॉल्व, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है बट यहाँ पे यही है, व्हेन वी डिजॉल्व शुगर और सॉल्ट देन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिड नॉट चेंज। मतलब जब हम शुगर और वाटर को डिजॉल्व करते हैं, शुगर और सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं इन द वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है लिखने में, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, व्हेन वी डिजॉल्व शुगर और सॉल्ट इन द वाटर देन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिड नॉट चेंज। सेम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो और सही से लिख लेना इसको। व्हेन वी डिजॉल्व शुगर और सॉल्ट इन द वाटर
then why the volume of water did not change. तो जब कभी भी हम शुगर और सॉल्ट को, दोनों में से कोई भी चीज़ है, उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो चेंज क्यों नहीं होता. तो हमने बताया था 10 ml है तो 10 ml ही रहेगा. लेकिन इसका रीज़न था कि देर आर लॉट ऑफ गैप्स, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो उस स्पेस में अपने आप को शुगर का पार्टिकल जाकर के सेट कर लेता, और इस वजह से जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता. 10 ml है तो 10 ml ही रह जाता है, और उसका वाटर लेवल बीकर में नहीं बढ़ता. तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है. किस एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, IIT या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं. तो इसको ध्यान में रखते हुए भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन बना करके डाला है. What is matter? What is matter? Describe the types and classification of matter. तो मैटर क्या है बताया जा चुका है. डिस्क्राइब करना है टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को, तो ये भी पढ़ाया हुआ पीछे. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैटर. या फीचर्स हैं समझने में, FES तो TCHER होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैटर. तो मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर, दोनों एक ही चीज़ होता है, तो दोनों में से वही एक ही मीनिंग हुआ. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैटर्स. तो फीचर्स ऑफ मैटर है, उसको एक्सप्लेन करना है. वीडियो काफ़ी छोटा बना रहे हैं और बहुत कम अभी इसमें दे रहे हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में अच्छे तरीके से ये समझ में आए, अच्छे तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सको. अदरवाइज़ लंबा वीडियो बना भी सकते थे, लेकिन अभी ये पार्ट 2, पार्ट 3, अबाउट 4 और 5 वीडियोस आएंगे. ऐसे में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उसको करेक्ट, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसको आप सही करके एक दो क्वेश्चन में जो कि मैंने बता भी दिया है. सो आई वांट दैट ऑल ऑफ यू मेक एन असाइनमेंट ऑफ regarding this chapter, this video. All the questions should be solved, should be maintained in your assignment, and I will wait. Till then you will not prepare your assignment, and after preparing your assignment you should have to scan, take any images of assignment, and you should have to post their assignments, post your assignment in the WhatsApp group by your name and roll number. Then I will check all of it. Thereafter I will make another video. So I will wait for you your assignment. That will be fair, because if you don't prepare your assignment, then what is the meaning of making videos? There is no meaning of making videos. So I have to make another classes video also. So please follow my orders, and we continue in your study. Be safe. Thank you so much, and see you later. Thank you.